All right. Please write down the aim of the experiment. It is to study the effect of concentration of reactants on the rate of hydrolysis of ester. This is an experiment that you have done in SY. So what you do is you take an ester RCOOR, you hydrolyze it. यानी क्या? You make it react with Add water, water and what do you get? acetic acid You get acid and alcohol. and alcohol. Now this reaction can be either acid catalyzed or it can be even base catalyzed. I think in SYBSc you have done both the experiments, right? Okay, if you don't remember, it's fine. But in TYBSc, we are going to only do the acid catalyzed hydrolysis of ester. Meaning, so tell me what all I need to put in my reaction. Reaction में मेरे पास क्या होना जरूरी है? I am going to have an ester, It's water and acid. water, and acid. Correct? From this, you're going to get the formation of acetic acid. And how much acetic acid is going to be formed, you're going to monitor that. यानी acetic acid ज़्यादा form हुआ तो reaction ज़्यादा हुआ कम हुआ ज़्यादा ज़्यादा हो हुआ. जाएगा. So basically what you're going to do is, now let me just explain. I'll just, you all remember this. So what you do is, in a burette, you take NaOH solution. You take this 0.1 normal NaOH solution. In a bottle, you're going to add, you're going to take two bottles first. In one you're going to take ester, and in one you're going to take acid. फिर पानी कहाँ है? Because you need water also, right? Why are we not adding water? In one you are taking ester, and in one you are taking acid. But we just wrote that my reaction is ester plus water in the presence of acid. ये कहाँ गया फिर? Remember, acid is always made in water. So acid में ज़्यादातर तो water ही है. So now when you mix this, do you have all these three? आपका एस्टर है, एसिड है और पानी है. Now what you're going to do is, as soon as you mix them, before you mix them, आप एक कॉनिकल फ्लास्क लेने वाले हैं. कॉनिकल फ्लास्क में आप थोड़े से आइस डालने वाले हैं, एंड यू गोइंग टू ऐड फिनोफ्थिलिन. कॉनिकल फ्लास्क में क्या क्या है? व्हाट डू हैव इन कॉनिकल फ्लास्क? आइस है और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है. आइस है और फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर है. Then what you do is, in one stoppered bottle you take ester, in one stoppered bottle you take acid, and you put it in a water bath so that they have the same temperature. As soon as you think you have kept it for 10-15 minutes, आप क्या करने वाले हैं? You're going to put this acid into ester. As soon as you mix them, you're going to pipette out 25 ml of this mixture immediately and put it here. And this mixture now will have mixture of acid, water, and ester with phenolphthalein and ice. And you're going to titrate this, and the end point is when you get a pink color.
नाउ दिस इज कॉल्ड T0. T0 यानी क्या? द रीडिंग एट व्हाट टाइम? जीरो टाइम. 0. इज दिस क्लियर? याद आया अभी? Yes, sir. ओके. अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो बाकी इजी है. आप क्या करेंगे? अपना घड़ी शुरू करेंगे 10 मिनट बाद और 25 ml ये करेंगे. इसको रिफिल करेंगे जीरो तक. 10 मिनट में आप दो काम करेंगे. एक तो इसको रिफिल करेंगे और इसको फेंक के दोबारा उसमें आइस लेंगे और फिनोफ्थिलिन लेंगे. 10 मिनट में आप यहाँ से यू विल टेक सम अनदर 25 ml, पुट इट हियर, टाइट्रेट इट, वो रीडिंग लेंगे. देन in the meantime you will fill this again, you will throw this, clean this. Then after 20 minutes again you will take 25 ml, put this in a flask which contains ice and phenolphthalein and titrate it. समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या है? You have already done this experiment, that's why I'm going little faster. Now let's see. This is what you're going to get. यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? Okay, what is set 1? Set 1 is you take 5 ml of ester and you take 100 ml of acid. Keep this in mind. Acid कितना है? 100 100 ml. ml और एस्टर 5 ml. 5 ml. यहाँ पे हम लोग T0 में क्या डालेंगे? What will we write in T0? जो फर्स्ट वाली रीडिंग होगी. फर्स्ट वाली रीडिंग. यानी आपने जब ए यानी तुम्हारा एस्टर और बी तुम्हारा एसिड है, जैसे ही इसने तुमको यहाँ पे डाला था, इमीडिएटली यहाँ से जो तुमने 10 ml करके जो तुम्हारे फ्लास्क में विच कंटेन्स फिनोल्फथिलिन एंड आइस, उसको जो टाइट्रेट करने के बाद जो रीडिंग आया दैट इज T0. T10 का वैल्यू कैसे डालेंगे हम लोग? Reading after 10 minutes. 10 मिनट बाद यहां से जो 25 ml निकाल के जो टाइट्रेशन करेंगे उसका नंबर यहाँ आएगा. 20 करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे. ये रीडिंग हो गया. नाउ यू नीड Yes, टू sir. फिल अप दिस T infinity. T infinity का मतलब है जब तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए. T infinity निकालने के दो तरीके हैं. एक तो आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दिन रख दो, अगले दिन आके रीडिंग ले लो 10 मिनट 10 ml निकाल के, उसमें जो रीडिंग आएगा आपको T infinity होगा. नहीं तो फिर दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आप उस रिएक्शन को थोड़ा सा 50-60 डिग्री तक घंटे भर हीट करो, उसके बाद जो रीडिंग लेंगे वो आपका T infinity हो जाएगा. सो यू हैव दिस, यू हैव दिस, यू हैव दिस. इज दिस क्लियर अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. ये कैसे भरेंगे? नाउ दिस इज T एंड दिस इज T0. इसमें से इसको माइनस करो, ये नंबर आ जाएगा, माइनस करो, नंबर आ जाएगा, माइनस करो, ये आ जाएगा. नाउ Yes, sir. आप ये कैसे भरेंगे? दिस इज T infinity माइनस T, यानी ये माइनस ये हो जाएगा. दिस इज A माइनस एक्स. इसका आप लॉग निकालेंगे तो ये आ जाएगा. ये आपका x है. ये आपका a क्या है? a इज दिस माइनस दिस इज a. एक्चुअली यू कैन पुट वन मोर कॉलम हियर. यहाँ पे आप एक कॉलम और बना लो. इस कॉलम को हम लोग क्या करेंगे? a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स कर लो, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस. ये नंबर आ जाएगा. उसका लॉग निकालो, ये आ जाएगा. उसके बाद हम लोगों को के निकालना है. के कैसे निकालना है? ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो. के कैसे निकलेगा? ये है आपका, ये लॉग वैल्यू है, मल्टीप्लाई, ये देखो, मल्टीप्लाई दिस बाई 2.303 एंड डिवाइड बाई दिस टाइम, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा. यहाँ का वैल्यू कैसे भरेंगे सना? सर log a अपॉन a माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से और हाँ, डिवाइड करेंगे टाइम t से. वो टाइम टी क्या होगा बेटा यहाँ पे? 10 होगा.
नहीं राजा, सेकेंड वाले में 20 होगा। सेकेंड वाले में 20 होगा। यहाँ पे कैसे भरेंगे? 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 40 से डिवाइड 40 करेंगे, यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा टेबल हो गया। जी सर। ये सबका मीन निकालेंगे, तो दिस विल गो इन योर, मीन कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल गो इन योर फर्स्ट दिस, ये देखो रिजल्ट टेबल में सेट 1 बाय कैलकुलेशन, यहां पे आएगा वो मीन वाला नंबर। ठीक है, ग्राफ से कैसे निकालना है देखिए। ग्राफ से हम लोग, देखो आपके पास लॉग ए माइनस एक्स भी है, लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स भी है। आप इसको ऐसे ग्राफ प्लॉट करो, इसको ऐसे ग्राफ प्लॉट करो, तो बेसिकली इसमें आपको 4 ग्राफ निकलेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि आपके दो सेट है। पहले सेट के आपके पास 2 ग्राफ निकलेंगे, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स वर्सेस टी। इसका आप स्लोप निकालो, स्लोप मल्टीप्लाई बाय माइनस 2.3 नॉट विल गिव यू के। अगला ग्राफ ऐसे निकालो, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मल्टीप्लाई स्लोप बाय 2.3 नॉट 3, यू विल गेट के। अगेन ये यहां पे भी आप थोड़ा सा चेंज करो, इसको ऐसे ये करो, 3 बनाओ, बाय कैलकुलेशन, बाय ग्राफ 1, और यहां पे क्या लिखेंगे? ग्राफ 2। Of 2. बाय ग्राफ 2। तो अभी आपके पास 3 नंबर आएंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तीनों आसपास होना चाहिए, सेम नहीं होगा कभी भी। समझ में आ गया? यस सर। ओके, वंस यू नो दिस, सेट 2 इज रियल इजी, क्योंकि सेट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, सब कुछ सेम रखने वाले। देखो ये पढ़ो, सेट 1 और सेट 2 में क्या फर्क है? इसमें 100 ml ईस्टर दिए सर। नहीं राजा, सॉरी 100 नहीं 10 है। ml 10 ml 10 पहले में क्या लिए थे? 5 ml। हाँ, ये सेम है, ये चेंज है। सो यू आर गोइंग टू नाउ go back and see the aim of the experiment, to determine the, to study the effect of change in concentration। तो हम लोग concentration किसका चेंज कर रहे हैं? ईस्टर का। एस्टर का। अगेन ये सेट 1 का है, सेट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह 10 लेंगे, ये 100 लेंगे, उसका एक टी जीरो होगा, उसका एक टी इंफिनिटी होगा, उस एक ए होगा, बाकी सब एग्जैक्टली सेम सेम है। पहले जो मिनट में रीडिंग लेंगे वो टी जीरो होगा, जो रिएक्शन खत्म होने का जो रीडिंग लेंगे वो टी इन्फिनिटी होगा, उसको माइनस करो तो ये तुम्हारा ई आ जाएगा। ये रीडिंग कैसे आएगा? सेम, आफ्टर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स ये रीडिंग लेंगे, और ये रीडिंग लेने के बाद बाकी सब सेम है। यू विल फाइंड आउट अ सेट ऑफ के, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको, नाउ यू शुड बी एबल टू फिल दिस रिजल्ट टेबल। अगेन मेक 2 कॉलम्स हियर, 2 कॉलम्स हियर। आप लोग से हो जाएगा अशफाक? यस सर। तो आपको ये करने आना चाहिए। ये कंक्लूजन में आप लोग लिखो, आप लोग को ये दिखना चाहिए कि लगभग सेम होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है? के किसी को याद है? 0 order reaction. नहीं राजा, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, सो यू That शुड, is the यहाँ पे first. यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा है। सिंस इट इज, इफ इट इज कांस्टेंट, यू विल से दैट द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखा तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी ठीक है। इज ओके? Yes, जी sir. सर। तो